Evening, good evening, students. I hope everybody is doing well. So today we are going to start with trigonometry exercise 11.2. So the first problem is evaluating the following: sine 45 degree plus cos 45 degree. In my last class, I explained you about all the degrees standard, that is 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So you need to remember only for sine 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. So 0, this is half, this is 1 by root 2, this 60 degree is root 3 by 2 and 90. When we want to go for cos, you can take cos in a reverse order. Cos 0 will be 1, cos 30 will be root 3 by 2, cos 45 will be 1 by root 2, cos 60 will be 1 by 2, cos 90 will be 0. Tan 0 will be 0, tan 30 will be 1 by root 3. Remember this, tan 30 degree is 1 by root 3, tan 45 degree will be 1, tan 60 degree will be root 3 and tan 90 degree is not defined. Okay, so depending upon this, we'll find out, we'll solve the different problems. Okay, now the first problem is given as sine 45 degree. So for sine 45 degree plus cos 45 degree, sine 45 degree is 1 by root 2, cos 45 degree is also 1 by root 2. So see, these two are like fraction with same denominator, so we'll take a common denominator at the numerator, so we'll get 2 by root 2. Or when want to rationalize this, this can be taken as 2 by root 2 into root 2 into root 2. It means the denominator is an irrational number, so we are rationalizing, converting the irrational to rational. So multiply with same root 2. So numerator will be 2 root 2 divided by root 2 into root 2 will be root 4, and then again will be 2 root 2 as numerator, 2 into root 2, that is, and denominator is square root of 4 is 2. So this gets cancelled, the answer will be root 2. If it stopped here, you can also stop here also. Now the second problem is given to you as uh, cos 45 degree divided by secant 30 degree and cosecant 60 degree. Okay, so cos 45 degree, we will take this as 1 divided by root 2, and secant 30 degree. So what is cos 30 degree? Cos 30 degree will be sine 60 degree. Sine 60 degree is root 3 by 2. Okay, so cos 30 degree will be root 3 by 2, and secant will be reciprocal of this, so it will be 2 by root 3 plus cosecant 60 degree. What is sine 60 degree? Root 3 by 2. So reciprocal, it will be 2 by root 3. Okay, so we are getting this as 1 by root 2. The denominator, in the denominator, the denominators are same, like fraction, take common denominator at the numerator. So this gives me 1 by root 2 divided by 4 by root 3. Okay, so when we take the reciprocal of the fraction, 1 by root 2 times, it will be root 3 by 4. So we'll be getting root 3 by 4 root 2. This will be the answer for. Okay, so now we'll be moving for the third problem. The third problem is given as third bit for the first problem is given to you as sine 30 degree plus tan 45 degree minus cosecant 60 degree, and the whole is divided by cot 45 degree plus cos
60 degree minus secant 30 degree. Okay, so now sine 30 degree, sine 30 degree is 1 by 2 plus tan 45 degree is 1 minus cosecant 60 degree. Sine 60 degree is root 3 by 2. So cosecant will be 2 by root 3 whole divided by cot 45 degree is 1 plus cos 60 degree will be sine 30 degree. Sine 30 degree is half. So cos 60 degree is half minus cos yeah, now secant 30 degree. So we have to see what is cos 30 degree. Cos 30 degree is sine 60 degree. Sine 60 degree is root 3 by 2. So cos 30 degree is root 3 by 2 and secant 30 degree will be reciprocal of this. So it will be I'll give you here. See, I am finding secant 30 degree. So I should know what is cos 30 degree. Okay, so secant is actually a reciprocal of cos, so it is 1 by cos 30 degree. Now cos 30 degree will be equals to sine 60 degree. Sine 60 degree is root 3 by 2, so that is our cos 30 degree. Now we have secant 30 degree, that is 1 by root 3 by 2, that is nothing but 2 by root 3. So this will be getting as 2 by root 3. Okay, now when you want to find out the LCM will be so you take separately, like for example you are taking for these two first. Okay, so I can write this as 1 by 2 plus 1 I want to write with denominator 2, it will be 2 by 2. If same numerator and denominator means we'll get whole minus 2 by root 3, and here also it will be 2 by 2 plus 1 by 2 minus 2 by root 3. Okay, then we can get this as it will be 1 plus 2 by 2 because we have the same denominator here minus 2 by root 3 divided by 2 plus 1 by 2 minus 2 by root 3. Okay, so this gives me numerator 1 plus 2 is 3. So I am writing here 3 by 2 minus 2 by root 3 divided by 3 by 2 minus 2 by root 3. यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से न्यूमरेटर में एलसीएम निकालो, सेम वैसे डिनोमिनेटर में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम निकाल लो, तो आपको आएगा ये 3 इंटू रूट 3 रूट 3 minus 2 into 2 is 4 by 2 root 3 divided by same 3 into root 3 is 3 root 3 minus 2 into 2 will be 4 divided by 2 into root 3 is 2 root 3. अब यहाँ पर आपको आएगा 3 root 3 minus 4 divided by 2 root 2 fraction divided by fraction into 2 root 3 sorry 2 root 3 into 2 root 3 divided by 3 root 3 minus 4. So this gets cancelled, goes one time, and this gets cancelled, goes one time. So your answer is 1. Okay, now this is the fourth bit. 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree. तो यहाँ पर 2 into tan 45 degree is 1, so it will be 1 square plus cos 30 degree. तो यहाँ पर आप देख लीजिए cos 30 degree is equals to sin 60 degree और मेरा sin 60 degree है रूट 3 by 2, so that is our cos 30 degree. तो यह आ गया रूट 3 by 2 whole square minus sin 60 degree is रूट 3 by 2 whole square. ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 1 स्क्वायर इज़ 1, 1 इंटू 2 विल बी 2 प्लस यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर जो है आपको करके देता हूँ मैं, रूट 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर. तो ये हो गया मेरा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 गेट्स कैंसर, विल गेट 3 by 4 minus 3 by 4. ओके,
तो ये +3/4 -3/4 gets cancelled. So our answer will be 2. Okay, now student, this is our fifth bit of first problem. Secant square 60 degree minus tan square 60 degree whole divided by sin square 30 degree प्लस cos square 30 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. साइन 60 सीकेंड 60 सीकेंड के लिए देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ. सीकेंड 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/cos 60 डिग्री. आप यहाँ पे ये देखिए cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज़ 1/2. तो cos 60 डिग्री भी मेरा हो गया 1/2. लेकिन सीकेंड 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा 1/1/2 दैट इज इक्वल्स टू 2. ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए सीकेंड स्क्वायर 60 डिग्री यानी ये हो गया मेरा 2 स्क्वायर माइनस टैन 60 डिग्री इज़ √3 होल स्क्वायर साइन 30 डिग्री साइन 30 इज़ 1/2 होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर. cos 30 इज साइन 60. ओके, साइन 60 आपका √3/2 है, √3/2 ले लेंगे. तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर इज़ 4 माइनस और √3 स्क्वायर मीन्स स्क्वायर और रूट गेट्स कैंसिल इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 1/2 स्क्वायर. तो 1 स्क्वायर इज़ 1, 2 स्क्वायर इज़ 4 प्लस √3 स्क्वायर स्क्वायर रूट गेट कैंसिल 3 2 स्क्वायर विल बी 4. तो ये आ गया मुझे न्यूमरेटर 4 - 3 इज़ 1. डिनोमिनेटर में लाइक फ्रैक्शन है तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया मैं और ऐड द न्यूमरेटर. तो ये बन गया मेरा 1 डिवाइडेड बाई 4/4. तो 4 1 टाइम्स 4 1 टाइम्स. तो मुझे आंसर आ गया 1. फाइनल आंसर इज़ 1. ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी हैव सेकेंड प्रॉब्लम. चूज़ द राइट ऑप्शन. आपका क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री. तो इसमें से आपको देखना है कि ऑप्शन ए करेक्ट आता है क्या, ऑप्शन बी आता है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी. ओके, तो सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री. 2 tan 30 degree will be 1/√3 divided by 1 plus tan 45 degree is 1 whole square. ओके, तो ये हो गया मेरे 2/√3 divided by 1 plus 1 square is 1. Okay, so this becomes 2/√3 1 plus 1 is 2. तो ये हो जाएगा by 2/1. ऐसा कर लीजिए आप इसको भी. ओके, तो आपका नेक्स्ट होगा फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन दैट इज़ 2/√3 इंटू 1/2. ओके, तो यहाँ पर 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स गेट्स कैंसिल. मेरे को आ गया 1/√3 दैट इज़ नथिंग बट tan 30 डिग्री. सो फॉर मी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. ये है आपका सेकेंड बिट प्रॉब्लम नंबर 2 का. 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री. और ऑप्शंस आपको दिया है ए बी सी डी. tan 90 डिग्री 1 sin 45 डिग्री या 0. तो हम उसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके देखेंगे क्या आएगा. 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan 45 डिग्री इज़ 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + tan 45 डिग्री इज़ 1 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 1 - 1 स्क्वायर इज़ 1 ओनली डिवाइडेड बाय 1 + 1. ओके, नाउ द न्यूमरेटर इज़ 1 - 1 विल बी 0 डिवाइडेड बाय 1 + 1 इज़ 2. 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ 0. सो आवर ऑप्शन इज़ डी. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ ये सेकेंड प्रॉब्लम का थर्ड बीट है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला है. यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन आपको लगेगा इस पर. 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री. तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं.
2 tan 30 degree divided by 1 minus tan square 30 degree. 2 tan 30 degree है अपना 1 by root 3 divided by 1 by root 3 divided by 1 minus 1 by root 3 whole square. ओके ये स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर. तो ये हो गया 2 इंटू 1 बाई रूट 3 मीन्स 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 3. ओके यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालिए आप, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1 इज़ 3 माइनस 1 इंटू 1 इज़ 1 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर 1 इंटू 3 इज़ 3. तो ये आ जाएगा मेरा 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज़ 2 बाई 3. ओके तो ये हो जाएगा मेरा 2 बाई रूट 3 इंटू 3 बाई 2. ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन इनटू रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन. ये चले गया. अब हमको बचा 3 बाई रूट 3. रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर यानी मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय रूट 3. तो ये 3 रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी रूट 9 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. तो ये 3 गोज 1 टाइम हमको बचा 3. अब ये रूट 3 बोले तो हमको ये बचेगा tan 60 डिग्री. दैट इज़ आवर ऑप्शन सी. Okay students. Yes student, now the third question is evaluate sine 60 degree cos 30 degree plus sine 30 degree cos 60 degree. और फिर आपसे पूछ रहा है कि what is the value of sine 60 degree plus 30 degree, what can you conclude. और दोनों को सॉल्व करने के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है वो बताना है आपको. ओके तो यहाँ पर पहले हम सॉल्व करेंगे साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री. साइन 60 डिग्री इज़ रूट 3 बाई 2 इंटू कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री इज साइन 60 डिग्री ओनली, दैट इज़ रूट 3 बाई 2 प्लस साइन 30 डिग्री होता है आपका 1 बाई 2. कॉस 60 डिग्री इज साइन 30 डिग्री, तो ये भी होगा आपका 1 बाई 2. तो रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी रूट 9 बाई 4 प्लस 1 बाई 4. 1 इंटू 1 इज़ 1, 2 इंटू 2 इज़ 4. स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3 एंड 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4. तो ये हो जाएगा अपना कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया मैं क्योंकि बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस, और न्यूमरेटर को ऐड कर लीजिए आप. आपको आएगा 4 बाई 4, दोनों को डिवाइड करेंगे आपको आएगा 1. ये आंसर आपको 1 आ गया. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या होता है. अगर ये दोनों को मैं ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा मुझे साइन 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज़ 1. दोनों का आंसर सेम आ रहा है मुझे. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम ये बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं साइन क्या था 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री. ओके या फिर मैं इसको ज़रा और इधर हटा लेता हूँ. तो यहाँ पर हमको दोनों में ये आंसर आ रहा है. सो वी कैन से साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज़ इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री. दिस इज़ द फाइनल आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज़ फोर्थ क्वेश्चन. इज़ इट राइट टू से कॉस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल्स, इसका एक्सपेंशन बोल रहा है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री.
बोल नहीं सकते कि ऐसा एक्सपेंशन है बल्कि। अगर हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आया तो हम बोल सकते हैं हाँ ये सही है। ओके, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। कॉस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो होता है कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इज़ ज़ीरो। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारा कॉस 60 डिग्री इंटू साइन इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इज़, यहाँ पे बताता हूँ मैं, कॉस 60 डिग्री इज़ साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। तो यहाँ पे आ गया मुझे 1/2 इंटू कॉस 30 डिग्री इज़ साइन 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज़ √3/2। तो यहाँ पे आ गया इंटू √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री इज़ √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। So 1 into √3 is √3 divided by 2 into 2 is 4 minus √3 into 1 is √3 divided by 2 into 2 is 4। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एलसीएम निकाल लिया, आप कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया क्योंकि दोनों बोथ आर लाइक फ्रैक्शन, कॉमन डिनोमिनेटर सबट्रैक्ट द न्यूमरेटर, और √3 माइनस √3 विल बी 0 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय द नंबर इज 0। तो हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज कॉस we are getting LHS is equals to LHS is equals to RHS। okay, so that implies cos 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री का एक्सपेंशन मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ओके, तो ये था इसका आंसर। यस स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम है। यहाँ पे बोल रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, वहीं पे बना दिया मैं राइट एंगल क्यू पर। पी क्यू इज़ गिवन है 6 सेंटीमीटर और आर पी क्यू यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है। तो आपको डिटरमाइन करो बोल रहा है वो क्यू आर और पी आर। ओके, ये दो साइड्स आपको मालूम करना है। अगर मैं 60 डिग्री से देखूं तो ये साइड जो है मुझे अपोजिट आ रही है। ओके, और ये है मेरी एडजेसेंट, क्यू के लिहाज से ये है मेरी हाइपोटेनस। तो पहले मैं जो है अपोजिट मालूम कर लेता हूँ। अपोजिट बाय एडजेसेंट इज़ tan। तो मैं ऐसा ले लेता हूँ कि ये जो है व्हाट इज़ गिवन, फर्स्ट आई विल राइट डाउन गिवन triangle PQR where angle Q is equals to 90 degree or PQ is equals to 6 centimeter। Now और एक दिया गया है एंगल P is equals to 60 डिग्री। तो यूजिंग दिस अगर मैं देखूँ अपोजिट, यहाँ पे ये मुझे अपोजिट आ रहा है, ये होता है मेरा एडजेसेंट, अपोजिट बाय एडजेसेंट tan, तो tan 60 डिग्री यूज़ कर लेता हूँ मैं, tan 60 डिग्री दैट इज़ ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। यहाँ पर ऑपोजिट साइड है मेरी क्यू आर और एडजेसेंट साइड है मेरी पी क्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज़ √3। क्यू आर तो मुझे मालूम करना है, पी आर मेरा 6 है, तो 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3 से, तो ये हो जाएगा मेरा क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 6√3। ओके, ये मुझे यहाँ पे मिल गया, ये हो गया मेरा 6√3। अभी हाइपोटेनस मालूम करना है। हाइपोटेनस के लिए आप साइन लो या कॉस लो, इट्स योर विश। अगर आप हाइपोटेनस के लिए कॉस 60 ले रहे हैं यानी एडजस्टेंट बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पे देख रहा हूँ मैं कॉस 60 डिग्री। अच्छा बताइए, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस। एडजेसेंट है मेरा यहाँ पे पी क्यू, हाइपोटेनस है मेरा पी आर, और कॉस 60 डिग्री इज़ नथिंग बट
cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री मेरा हाफ है, तो cos 60 डिग्री मेरा हाफ आ गया। हाफ इज इक्वल्स टू पी क्यू, पी क्यू मेरा 6 है, पी आर मुझे मालूम करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आपको आ जाएगा पी आर इंटू 1 इज़ पी आर और 2 इंटू 6, तो दैट इम्प्लाइज पी आर विल बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। ये हमको क्यू आर मिला यहाँ पे 6√3 और पी आर हमको मिला 12 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव द सिक्स्थ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम बोल रहा है ट्रायंगल एक्स वाई जेड, और जहाँ पर y जो है 90 डिग्री है, ट्रायंगल एक्स वाई जेड में y 90 डिग्री है, और वाई जेड आपको दिया गया है x, और एक्स जेड आपको दिया गया है 2x, और आपको डिटरमाइन करो बोल रहा है डिफरेंट एंगल्स। ये एंगल्स हैं, आपको x यहाँ पे मालूम करो बोल रहा है, और यहाँ पे ये z मालूम करो बोल रहा है। तो सॉल्यूशन में अब हम कैसा करेंगे, सिंस इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल सो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है इसके अपोजिट जो आती है, राइट एंगल के अपोजिट जो होती है उसे हाइपोटेनस। सो एक्स जी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जी स्क्वायर। एक्स जी यानी एक्स जेड स्क्वायर जो दिया गया है मुझे 2x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई मेरे को फाइंड आउट करना है, प्लस वाई जेड जो दिया गया है मुझे एक्स स्क्वायर। तो ये अगर मैं 2x होल स्क्वायर करूँगा, 2 स्क्वायर इज़ 4, x होल स्क्वायर इज़ x स्क्वायर, और ये x स्क्वायर को मैं ट्रांसपोज कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई होल स्क्वायर हो गया। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर मैं करूँ तो मुझे आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई होल स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लूँ, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चले गया, और ये मैं ये स्मॉल लेटर में नहीं है, ये एक्स वाई, तो ये एक्स वाई विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स, ये 3 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर सो इट रिमेन्स इन द रूट ऑफ, सो ये मुझे मिल गया ये x√3। ओके, अब आपको मुझे x मालूम करना है। x के लिए ये ऑपोजिट है, ये जो है एडजेसेंट है। आप ऑपोजिट बाय एडजेसेंट देख के मालूम कर लिए तो tan यूज़ होगा, तो हम बोल सकते हैं tan y एक्स जेड, ये एंगल है, विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो यहाँ पे ऑपोजिट है वाई जेड बाय एडजेसेंट है एक्स वाई, तो ये बन जाएगा मेरा tan रूट ऑफ वाई एक्स जेड विल बी इक्वल्स टू वाई जेड मेरा है x, और एक्स वाई है मेरा x√3, तो x1 टाइम्स चला गया, tan रूट ऑफ वाई एक्स जेड विल बी इक्वल्स टू 1/√3। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan एक्स एंगल वाई एक्स जेड 1/√3 tan में कब आता है, tan 30 डिग्री। ओके, सो tan goes, so I get y एंगल वाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, तो ये आ गया मुझे 30 डिग्री। वैसे ही मुझे देखना है, ये मुझे मिल गया एक x, और दूसरा जाना ये एंगल देखना है, इसके लिए ये ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट ले लो, tan यूज़ कर लो, tan यूज़ करना है तो आपको, या फिर आप साइन कॉस भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं tan यूज़ कर रहा हूँ तो tan यूज़ करके बताता हूँ आपको। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए tan एंगल क्या दिया था, वाई जेड एक्स, tan एंगल वाई जेड एक्स विल बी इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो यहाँ पे अपोजिट जेड के लिए अपोजिट है एक्स वाई और एडजेसेंट है वाई जेड।
ओके, तो इसमें हो गया tan एंगल है वाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई, मेरा एक्स वाई जो है x√3 है, डिवाइडेड बाय ये x है, जेड वाई इज x। ओके, तो यहाँ पे x गोज़ वन टाइम्स, तो ये हो गया tan एंगल एक्स वाई जेड एक्स विल बी इक्वल्स टू √3 आया हमको, यानी tan एंगल वाई जेड एक्स विल बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ये tan चल गया, मुझे एंगल बना 60 डिग्री, तो ये एंगल यहाँ पर आ गया मुझे 60 डिग्री। ओके, तो इस तरह से आपको ये दोनों सॉल्व करने का है। होप आई आंसर द क्वेश्चन। Yes, student. The next problem we have is it right to say sin A plus B is equals to sin A plus sin B? अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ए में बोल रहा हूँ कि ए मेरा जो है 30 डिग्री है और बी को मैं ले रहा हूँ 60 डिग्री, तो LHS अगर मैं देखूँ लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ साइन ए प्लस बी, तो मुझे क्या आएगा, देखिए ये हो जाएगा मेरा साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जो देगा मुझे साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री इज़ 1। ओके, अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड है मेरा साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 डिग्री, यहाँ पे मैं उल्टा ले लिया था, यहाँ पर होना चाहिए मुझे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री मेरा आएगा 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री है मेरा √3/2, एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर 1 प्लस √3। तो इस लिहाज से तो मुझे LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ साइन A प्लस बी इज़ नॉट इक्वल्स टू साइन A प्लस साइन बी। लेकिन और एक चीज़ है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों मेरे एंगल ए बी इक्वल है, तो मैं सपोज करो लेट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बोल रहा हूँ, तो मैं साइन ए प्लस बी दैट इज़ साइन, ये LHS है मेरा, साइन 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री दैट इज़ इक्वल्स टू साइन 0 डिग्री, और मेरा आंसर 0 आएगा। और RHS है मेरा साइन ए प्लस साइन बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 डिग्री प्लस साइन बी भी मेरा 0 डिग्री है, सो 0 प्लस 0 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अगर वो आपको बोल रहा है कि ए और बी दोनों इक्वल है, तो उस केस में आप दोनों को 0 डिग्री लेकर बता सकते हैं दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको हो रहा है साइन ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, वरना दूसरे एंगल्स में तो कभी नहीं हो सकता है। ओके, so we completed our exercise 11.2, and we will go for our next exercise in our next session.